to learn export-import business. Hello, next. I'm very happy to be part of this family, global welcome. Fortune family. Welcome. Thank you, ma'am. Hello, next. Hi, Sushma. And hi, everyone. Myself, Sukesh. I'm working as a software engineer. So I recently joined this global exim. So looking ahead with the great opportunities. Yeah, that's it from my side. Oh, meeting. Meeting. Hello, next. Yeah. Hello, madam. This is Amit Jaiswal. Yeah, this is Amit Jaiswal. I'm from Singrauli in Madhya Pradesh. And yesterday only I registered for this platinum program. आप कब join हुए हो, sir? Yesterday night after your session, we attended your session. Okay. That's great. So from where you are? I'm from Singrauli in Madhya Pradesh. Okay. And what you are doing? Yeah, I'm doing various things, like I'm also associated with agriculture, agri-based business. I'm a drone pilot and I have different business also. Plus, I have this firm which I've just recently registered and got that IEC and all. And future, I'm looking ahead for developing it as an export house. Thank you, ma'am. Next. Hello, next. Who is there? Rohini Umar. You are also new. आपका आवाज नहीं आ रहा है सर. No. एक बार हेडफोन निकाल के चेक करो. Hello. Yes. Now it is okay. Am I audible now? Yes. You are audible. My name is Charitra. I am from Kanpur and currently I'm in the business of ladies garments and want to do exports of textile. That's great. Welcome. So next. Sumedha, you also can. बहुत सारे लोग नए हैं. You all are new to each other. Yeah. So hello, ma'am. Hi, everyone. I am Sumedha. I am also from Bangalore. Even I work in IT, and at the same time, I wanted to explore something new, to start something from my own. And I've joined ma'am recently. And very happy to even call out ki last week only we also completed our first air shipment of Dendi and Karela to Dubai with ma'am, with her help, and it was a wonderful experience with her. Welcome. Chalo, next. अरे चलो बताओ. Rajashree, you also can speak. Hello, Yeah. I'm Rajashree Hagone from Pune. मैंने भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और हम भी एयर शिपमेंट के ग्रुप में थे और अच्छा एक्सपीरियंस था और अभी और भी करना चाहते हैं एक्सपोर्ट. आशु काय रे? Hello. Yes, hi Vijayji. Yeah, good evening, ma'am. Yeah, how are you, ma'am? I'm fine. Yes. Thank you. Yeah. आपका कैमरा This is चल रही है. Yeah, ma'am. There is a power cut here, and it is slightly. No issues. Yeah. Yeah, tell It's us. raining also. Yeah. So this is Vijay Kumari. I was working for a bank for 21 years. Then I moved on to HR in my own family concern.
And now I thought I'm also doing some freelance counseling for students and senior citizens. And now I thought I wanted to do something like after seeing Sushma madam in couple of her videos, that really made me think, why not I also join, and I want to start exporting something. There are many items, like many products in India, which the people abroad, they don't even know what we have here in India. So why not make export and make use of this? And that's why I joined Sushma ma'am. Yes, welcome. Actually, she is very inspiration for all of us, because at the age of 58 and about to 60, but still she is like very much active, inspired, and want to do something. So we need to do something more than that. Is it? Thank you. Yes, देखो अभी exactly. हाँ बोलने के लिए भी कितने एक्टिव है सब लोग, काम करने के लिए कितने हो गए पता नहीं है. Myself. ओके चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा फास्ट फास्ट चलो, तब जाके हम बाकी की बातें भी कर पाए. सारनाथ जी, यू ऑल्सो कैन स्पीक. मंदार, महेश, on your camera, introduce about you. Are you there? जी मैम. Yes, yes. Please introduce बोलिए. about yourself. Yeah. Myself Sarnath Ramtiki from Nagpur. Okay. And right now I'm not doing anything just because of Corona. We have lost everything. My whatever I was doing. So after Diwali, it will be get started. And right now I'm showing. I'm having already interest in exports. So I want to take a secondary business option toward the exports. And in that, I got you on your mails. I was always following you and watching your videos also. So I joined you. That's all. Chalo, who left? अच्छा, left भी. Sahabi. I think Shubham is there. पता है अभी कैमरा क्यों ऑन करने के लिए कहती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि लोग ऐसे सिर्फ ज्वाइन होते हैं, कैमरा ऑफ कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और जब भी मैं नाम लेके भी पुकारती हूँ तो भी कोई जवाब नहीं देता उसका. 1 घंटे का सेशन होता है तो, और वो भी वीक में, कभी कभी तो लास्ट वीक तो मुझे टाइम भी नहीं मिला, 2 हफ्ते बाद मिलते हैं तो भी कैमरा में अपना चेहरा दिखाने के लिए लोगों को प्रॉब्लम है. और मुझे पता है मेरे सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे दिखते हैं, हाँ ना. और अगर आप खाते भी दिखाओगे ना मुझे तो भी मुझे कोई इशू नहीं है. Oh yes, Mandar, introduce yourself. Hello, ma'am. Hello. Actually, I'm at client's place. That's why I'm not putting on my camera. Just अपने बारे में Hello. बताना है. About you, your Yes. name, what you are doing, and what you want to do. Yes. Hello, everyone. I'm Mandar Deshmukh from Pune. Actually, I'm old student of ma'am, and currently I'm doing handicraft exports to UK and Canada, and I want to expand my business. That is why I'm here today, and under ma'am's guidelines, Yes, definitely. I'm sure definitely. I will be. Yes. Definitely. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, yes. Welcome, Mandar. So अभी समझ के चलो, this is just a rough thing I am telling you. It is not about the core also, but just roughly. अगर हम एक दूसरे के लिए अगर introduce नहीं करेंगे, how we can connect each other and how we can get to know about each other. Like for example, Mandar has like now told, like he is into handicrafts, he is exporting to UK. And about Mandar, actually Mandar is my very old student in 2015. It is not about now 17 and 18 also.
He's very old student. He's exporting Ganesh idols in Marathi Ganpati. Okay, he's exporting Ganesh idols, and with Ganesh idols, like decorations, items, and all other things also. So in the handicrafts, he's rightly doing very well, and he's exporting to UK and USA also. So if you get to know about each other, that someone is doing like such kind of things, someone is exporting such kind of items, you can might be connect to them, that person. You can learn from them, you can connect and collaborate with them also. That is why it is needed to introduce about each other. This is the platform for you all people, that you can like either ask for the help, tell about yourself, what you want to do, what you are actually doing. Might be like you can get many people connected with you with the same interest. So use this platform. It is not about just like hiding yourself and hiding the identity. And it is not about just gaining the knowledge. Knowledge will be used when and then only जब हम साथ में रह के कुछ ना कुछ तो एक दूसरे के साथ काम करेंगे. आज अगर मंदार को एक्सपीरियंस है about the handicraft, Ganesh idol and all other things, why not to connect with Mandar and get it like more exposure? कि हम और कोई प्रोडक्ट वहां से मतलब कनेक्ट कर सकते हैं क्या उसको? अगर वो महाराष्ट्र से गणेश आइडल बेचता है, like for example you or someone from Hyderabad, someone from Bangalore, someone from Kerala है, तो वहां से भी कुछ ना कुछ तो हैंडीक्राफ्ट का आइटम मिलता है. तो क्यों हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं? So there are a lot of things. That is why ना listening and communicating, the both things should be happen here. तब जाके बात आगे चल सकती है. Is it? ओके तो सबके लिए जो भी पुराने हैं उनको तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पता है, बहुत बार हम बोल चुके हैं. फॉर द न्यू पीपल वी हैव ऑर्गेनाइज्ड 3 days जूम सेशन ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 1st, 2nd and 3rd August. Okay, which will be the Zoom session, online होगा. So we will connect on the Zoom session and which will be at the evening. जो मैंने आपको कहा था कि Zoom session जो होगा वहां पे हम एडवांस में बातें करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है. So which is organized on 1st, 2nd and 3rd. उसका जो भी डिटेल अपडेट होगा, टाइम और जो भी कुछ लिंक होगा, that will be shared on the group. And at that time, 1st, 2nd, 3rd को we will see in the detail from the start to the end about the export import business. So everything about the export import business we will learn on 1st, 2nd and 3rd August. Okay. So this session, ये जो सेशन है, मतलब there are 2 types of session we are conducting for the global fortune students and which is recently bifurcated. So पहले हम एक ही लेते थे, अभी recently bifurcation किया गया because for the new students and old students. अभी old student जो भी है वो तो already मतलब they are gone through all the processes and all. इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी उन्होंने वो फेज कंप्लीट करके आगे चले हैं क्योंकि उनको पूरी क्लैरिटी है. अभी वो आगे की सोच रहे कि क्या करना है, कैसे करना है. सो दे आर इन द अहेड, राइट. और जो नए स्टूडेंट है उनको शायद कुछ भी पता ही नहीं है अभी तक. सो इसीलिए मतलब हर मंथ में 1-3 दिन का जूम सेशन होता है. सो यू प्लैटिनम यू कैन रिपीट इट एवरी टाइम, नो इश्यूज इन दैट. ओके, वहां पे हम स्टार्ट टू एंड पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखेंगे. और जो भी वीकली मेंटोरिंग सेशन होता है दैट इज फॉर द ग्लोबल फॉर्चून के पुराने स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो ऑल मास्टर ग्रुप के लिए होगा. सो दिस इज द मास्टर ग्रुप वी आर कनेक्टेड. और मास्टर ग्रुप में एडवांस डिस्कशंस किए जाए, नॉट द बेसिक. गॉट इट? क्योंकि यहाँ पे सारे मिक्स लोग हैं, पुराने भी है, नए भी है, ऑलरेडी एक्सपोर्ट करने वाले भी है, इन द प्रोसेस वाले भी है. सो दे आर मिक्स पीपल टुगेदर. सो वी आर नाउ एट द मास्टर ग्रुप. आप सब लोग मास्टर ग्रुप में हो. सो यू आर नॉट न्यू एंड ओल्ड. ओके, सो यहाँ पे हम आगे वाले डिस्कशन देखेंगे. शायद अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ऑलरेडी एक्सपोर्ट का काम चल रहा है, वहां पे कुछ इश्यूज है, कुछ ऑर्डर आई है, इंक्वायरी आई है, यू कैन शेयर हियर ऑल्सो एंड वी कैन डिस्कस. ओके, आपने कुछ अचीव किया हो, ऑलरेडी कुछ तो काम हो चुका है, एक्सपोर्ट भी हो चुका है, यू कैन शेयर योर सक्सेस स्टोरी हियर ऑल्सो. सो वट एवर द थिंग वी कैन डिस्कस टुगेदर हियर. So now today's topic we have like find out social media marketing about the business. Business का marketing कैसे करना चाहिए and why this is the need. मतलब ये जब भी मैंने देखा, अब आज अभी अगर मैं for example कहूँ, I have traveled to Iran, I have traveled to Nepal also. और 2 countries को जाने के बाद जब भी मैं वापस यहाँ पे आई, so what I found majority things why I have got the market access, why how I have developed that market. ईरान का भी और नेपाल का भी. Okay, there are a lot of factors affected on that. So and that is why I got the success. But still, what is the major important role in that success and how you can develop your market also.
and I know definitely, I'm sure and guaranteed about that. No of my student any, मतलब कोई भी आप में से वो काम करता नहीं है अभी. इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ तो भी आपने कभी काम किया नहीं है. एंड दिस इज अबाउट द मार्केटिंग. हम सब कुछ करते हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं करते. एंड बिजनेस इज नथिंग. अगर मार्केटिंग नहीं है तो बिजनेस ही नहीं है. यस और नो? Yes, I agree with you. आप में से अभी कितने लोग मार्केटिंग कर रहे हो बताओ. Just tell me, how many of you are doing the marketing? अरे कुछ भी कर रहे हो तो भी बताना. Yes. I think, am I audible? Yes, you are audible. You are audible. बराबर है ना. तो ऑडिबल होके भी फिर बात नहीं कर रहे हो आप. या क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया? Are you asking in generic or like in whatever we are doing in related to our business? What I didn't. I just want to know. कैलाश जी बोल रहे, आई एम डूइंग बाय फेसबुक. ओके, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग. ठीक है. और कोई क्या क्या चल रहा है? महेश जी ने कहा यस. अमित जी ने कहा यस. They are doing digital marketing. Digital marketing. Digital marketing. Oh, yes, that is why I'm asking you. Any kind of marketing, what you are doing right now? यस मैडम, मैंने इंडिया मार्ट पर रजिस्ट्रेशन किया है. ओके. यस, एंड फेसबुक पे अभी देख रहा हूँ कि ओके ओके. एक तो पहले समझ के चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम. अभी मुझे पता है आप कितने लोग रिस्पॉन्स करोगे नहीं करोगे. माइट बी यू आर डूइंग दैट, माइट बी यू आर नॉट डूइंग दैट, व्हाटएवर द थिंग्स. So don't criticize that, don't go in the judgment and analysis part. मुझे बस इतना बताना है कि if you want to really do the business, if you are really serious about the business, you can't forget and you can't excuse the marketing part. This is the reality. ठीक है. आपको लगेगा आप अपने प्रोडक्ट का काम कर रहे हो, प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एंड यू डोंट नो, लाइक नहीं किया तो भी चलेगा, तो मैं कहूँगी बिजनेस ही नहीं चलेगा. आपको कितना पता है कितना नहीं पता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, फॉरगेट अबाउट दैट. But you need to understand the like power of marketing. वो क्या है? For example, अगर मैं बताऊँ आपको, like जब भी मैं अभी नेपाल में गई थी, just I will give you one example. अभी मैं नेपाल में गई थी. I don't know like मैं वहां पे जाके क्या करूंगी, क्योंकि we have planned just Nepal trip to develop the Nepal market for the business, for the export and import, and the second is for the service. So global fortune की जो services है वहां पे मुझे global fortune की family create करनी है. So like I have developed the Indian market, I just want to develop the Nepal market also to connect Indian people with the Nepal. So India and Nepal, we can connect and we can trade with each other. So that is why I just gone to Nepal. वहां पे जाके मुझे सारी चीजें करनी थी. मतलब मुझे हॉल ढूंढना था, लोगों को प्रमोशन करना था, ये वो ऐसे बहुत सारी चीजें मुझे वहां पे जाके करनी थी. And I can't do from here in India. वहां पे जाने का just मैं एक एग्जांपल अगर बताओ, I just want to connect with the colleges also. I just want to connect with the universities also. So there are different reasons for that, but yes, I just want to crack that. और मैंने एक दिन में plan out करके, I have like list out all the colleges and universities, and I have rented bike in Nepal. Again, I just gone and visit to the colleges. So they don't know about me, right? And I don't know about them. So I just exchange the card. I've just get the concerned person details, training and placement department, and just gone there. I have shared my visiting card. I'm just like, I'm running my company in India and I'm doing this, that, and whatever the things. So some of the people exchange me their contact details, and उसके बाद अभी मुझे आगे काम करना है. So one college, which is Global College International, which is in Nepal. So I've just same way, I approached to them also. Okay, while discussing, I have shared my card, and while they are communicating with me, okay, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, इंडिया में आपका काम कहाँ पे है, whatever that we are in the discussions, and while discussing, they have checked my profile on internet. ये मुझे बाद में पता चला.
तब मुझे डिस्कशन में पता नहीं था ये. Okay, I have just exchanged my card. We are discussing with each other, and while discussions, they are checking me. Like जो भी मैंने कंपनी का नाम लिखा था या फिर मेरा नाम लिखा था, they are checking on the internet. They opened the Facebook और Facebook पे उन्होंने सारा वो प्रोफाइल चेक किया. Okay, within the discussions only, and after the discussions, they have given me the chance to present in their college. So same day, first visit में ही, okay, they have given me the chance to present in their college. And I get the 3 sessions in the college. So management students के ऊपर I have given the 3 sessions in that college. अभी समझ मुझे ये बताओ कि ये सारी प्रोसेस होने के लिए या फिर मुझे वो कॉलेज में लेक्चर मिलने के लिए what is the most important factor worked out? क्या काम आया? आपका प्रोफाइल जो नेट पे है. हेलो. हाँ, yes, tell me. आपका जो प्रोफाइल नेट पे है और आपने जो ऑनलाइन उन्होंने आपका पूरा प्रोफाइल चेक करने के बाद आगे प्रोसीड किया. नॉट दे आर नॉट बिलीविंग ओनली ऑन योर विजिटिंग कार्ड. डेफिनेटली. ऐसे में बहुत सारे और एग्जांपल देने वाली हूँ. दिस इज जस्ट वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू. इट इज नॉट अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस. आप कहोगे आप ट्रेनिंग बेचते हो, आपका कंसल्टेंसी ट्रेनिंग है. दिस इज जस्ट अ प्रोडक्ट एंड सर्विस. धंधा तो चल रहा है ना. सो ये प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, वॉट एवर इट इज, बट वाई पीपल विल ट्रस्ट ऑन यू? क्यों ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर? दूसरी बात, जब भी मैं नेपाल के कालीमाटी मार्केट में गई थी, okay, which is the fruits and vegetable market, so I want to develop my business there also and for my students also. So जो भी हम मतलब एग्री में काम कर रहे, we will develop the market in Nepal for that kind of products. Spices हो, vegetables हो या फिर processed food हो. So I've just visited to that market also. वहां पे भी जाके जब भी मैंने उनको like मेरा जो प्रेजेंस था या कंपनी का नाम देके वेबसाइट हो, कौशल फूड प्रोडक्ट्स की वेबसाइट, उसका फेसबुक पेज हो या फिर मैं कौन हूँ उसका प्रेजेंस हो, they have seen that is why they have interacted and communicated further. It is not about just oral discussions ki hi hello aap kya ho main kya hu or exchange the visiting card and no use now. It is not like that. So क्या मैटर करता है उसके ऊपर काम करना चालू करो. आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा लेकिन मुझे क्या उसका, मुझे कहाँ पे पता है आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है? Unless and until I will see you in any of the platform, तब जाके मैं बिलीव करूंगी कि आप कुछ तो बिजनेस में हो. और अगर आज का लैकिंग पार्ट क्या है बिजनेस में, तो दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट. पीपल आर एक्चुअली, मैं कहूंगी एक्सक्यूज देते हो आप या फॉरगेट करते हो या आपको करना ही नहीं होता. दैट इज अप टू यू. आपको ही पता होगा वो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ईरान के बारे में अगर कहूँ, ओके, जब भी मैं ईरान को गई थी, सो ईरान को मैंने यहाँ से ही टारगेट किया था पहले. आई लाइक जैसे मैंने आप सबको बताया है, कनेक्ट टू एम्बसीज, कनेक्ट टू चेंबर, कनेक्ट टू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, ये सब मैंने खुद किया है. ईरान आई हैव लाइक टेकन द डेटा. इफ आई विल शो यू अबाउट द नेपाल आल्सो, you can come to know how I have developed the market in Nepal and Iran. Is it screen? Yes or no? Yes. You can see here now trade inquiry. We sent mail to काठमांडू. नेपाल की गवर्नमेंट को मैंने भेजा था. एम्बसी जो भी मैंने हमेशा आपको कहा है, एम्बसी या चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्हाटएवर. So this is the mail I have sent to them. We want to expand our market in Nepal and please support us with the distributor, importers and suppliers. And they have given the reply. Now see here, agro-based products, food grain, fruit processing, ये भी food processing की ही companies, distributors of food processing, कालीमती वेज एंड फूड डेवलपमेंट बोर्ड का है, स्पाइसेस का है,
इन्वेस्टिंग इन नेपाल अगर आपको करना हो तो क्या है, ऑल नेपाल कमोडिटी एसोसिएशंस, उनके सारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के है, एंड चेंबर ऑफ कॉमर्स इन नेपाल। सो ये सारा लिस्ट मतलब उन्होंने ऑलरेडी भेजा था। सो व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड, जब भी मैं बिफोर विजिटिंग टू कंट्री, तो ये सारा लिस्ट मैंने ऑलरेडी निकाला था, उनको कांटेक्ट करके, फिर उसके हिसाब से ये जो भी कॉन्टैक्ट्स मुझे मिले थे, ये जो भी कॉन्टैक्ट्स मिले थे, ये भी अन्नपूर्णा वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, उनका जो भी कुछ है वहां पे दिया है कि वो क्या करते हैं। तो ये इट इज नॉट अबाउट एग्री एंड फूड, बिकॉज दिस इज माय प्रोडक्ट एंड आई वांट टू डेवलप द मार्केट, सो आई हैव जस्ट टेकन दिस स्टेप। अभी हर बार मैंने कहा है कि आपको जो प्रोडक्ट्स है, जो भी कर रहे हो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। whatever your product, हैंडीक्राफ्ट हो, टेक्सटाइल हो, फुटवेयर हो, फार्मा हो, इंजीनियरिंग हो, जो भी कुछ आपके प्रोडक्ट्स है, इट इज नॉट अबाउट ओनली स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात चल रही है। सो दे आर हेल्पिंग यू विद द लिस्ट। लेकिन अभी काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। अगर मैंने कहा कि चलो यहाँ पे तुलसी स्पाइसेस एंड फूड प्रोडक्ट्स, इनको अगर मैंने मेल भेजा कि ओके दिस इज माय कंपनी एंड आई एम डूइंग दिस दैट, जो भी कुछ है वो अगर मैंने मेल भेजा, तो उनको रिप्लाई करने के लिए भी तो कोई वजह होनी चाहिए ना, व्हाई दे विल रिप्लाई यू। फर्स्ट दे विल चेक यू, आपकी कंपनी को चेक करेंगे, अबाउट यू, योर कंपनी, बिजनेस, वो सब चेक किया जाएगा। एंड नो वन इज लुकिंग दैट आपका फिजिकल प्रेजेंस है या नहीं, दे आर लुकिंग वर्चुअली आपका प्रेजेंस कितना बड़ा है, या फिर वर्चुअली आप हो भी या नहीं। व्हाट गूगल इज टेलिंग यू, आपके बारे में गूगल क्या बताता है। और गूगल ने बताया कि यस चनमित इज देयर इन द बिजनेस, यस आई एम एग्री विद दैट। और गूगल ने बताया कि चनमित नहीं है, चनमित नाम का कोई बंदा ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी, नहीं है वो। फिर दो यू आर देयर बट स्टिल आई विल नॉट बिलीव ऑन दैट। दिस इज द रियलिटी। अगर मैंने कहा कि केडी सुषमा नाम आपने ऐसे सुना किसी से, लेकिन गूगल पर डाल के देखा तो नहीं मिला, तो क्या मानोगे? फिर भी है, नहीं मानोगे। Kaushal Food Products is my company, and if you put on the Google and Google is not displaying anything about that company, what you will think? नहीं है वो। This is the same, सिर्फ सुनना नहीं है इसको, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना है। अगर आप सच में बिजनेस करना चाहते हो तो की बात है। ज्ञान लेके कुछ फायदा नहीं होता, ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उसके ऊपर काम करते जाना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तब जाके वो आगे चलेगा। सो आगे की बातें तो हम करेंगे, कस्टमर मिलेगा, वो उसके साथ क्या बात करनी है, कॉस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब हम करेंगे। लेकिन वो प्रोफाइल, वो जो बायर है आपका, वो पिक्चर में आने के लिए व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके ऊपर काम करना पहला काम है। एंड दिस इज मार्केटिंग इज नॉट अ वन डे एक्टिविटी, 1 month activity or 1 time activity. It is every day activity. आप सब कुछ छोड़ दो, लेकिन ये छोड़ना आपके लिए बहुत बड़ी भारी हो सकता है। तो अगर बिजनेस करना चाहते हो, this is the first important task you need to do from today now onwards, and it is continuously. आपको अपने बिजनेस का प्रेजेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करोगे, डोंट आस्क मी लाइक मैम बायर नहीं मिल रहे मुझे। तो जब भी आप ये क्वेश्चन पूछोगे, पहले मुझे इसके आंसर देने पड़ेंगे आपको, कि आपने कितना काम किया मार्केटिंग के ऊपर, या फिर आपने प्रेजेंस कितना क्रिएट किया, तब जाके बात आगे जाएगी। इज इट? यस मैम। और रही बात उसके आगे, फिर अगर प्रेजेंस क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी नीड टू डू एंड वेयर वी नीड टू क्रिएट अवर प्रेजेंस। तो उसके लिए फिर बात आएगी आगे की, कि हमें कहाँ पे कैसे प्रेजेंट क्रिएट करना पड़ेगा। So we will see now it. Like अभी अगर मैं कहूँ कि चलो बेसिक हम काम करते हैं, एक तो पहली चीज है आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। This is mandatory in the international business. It is not optional because it's a biodata of your company and profile. जैसे हमारा खुद का बायोडाटा होता है, वैसे वो कंपनी का बायोडाटा हो गया। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल समझ के चलो, अभी मैंने अगर ग्लोबल कॉलेज इंटरनेशनल को जस्ट रैंडमली मेल लिखा, okay, I am a trainer and I want to connect with you and your college and whatever, because I want to sell my services to them. Okay, so I need to attach some brochure or company profile. Then they can understand about my work, company presence, and what I'm doing in the market and what I have. Right? और वहां पे अगर मैंने वेबसाइट का मतलब एड्रेस डाला, so then they will like कि ठीक है, ये कंपनी सीरियसली काम कर रही है, और बहुत सारी चीजें जो आप बोल नहीं सकते
वो आप वेबसाइट में बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर सिर्फ बोला, आपको फोन किया मैंने, यू आर माई कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, और मैंने सिर्फ कस्टमर आपको फोन पे बताया, ओके आई हैव टेकन होल इंडिया, होल पैन इंडिया सेमिनार्स, ये सुनना। और अगर मैंने उसके साथ आपको विजुअल दिखाया ऑन माई वेबसाइट, सी माई फोटोज एंड एवरीथिंग, लाइक आई हैव टेकन लॉट ऑफ सेमिनार्स एंड ये वो, अभी आप खुद समझ के चलो कि इम्पैक्ट क्या होगा उसका, होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि यू कैन रिलेट दैट थिंग्स। और अगर आप ऐसे ही बता रहे हो कि माय प्रोडक्ट इज सो गुड, लाइक फॉर एग्जांपल चनमित, वी हैव लाइक चनमित, अगर मुझे बता रहे, ओके चनमित सिंह भाटिया, ही इज फ्रॉम कानपुर एंड ही इज इनटू फुटवेयर, जस्ट आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ हिम, ओके। अगर चनमित आप बता रहे हो किसी भी बायर को, यस वी हैव द फुटवेयर शॉप, वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, बिकॉज वी हैव द गुड कनेक्ट, वी हैव द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द मार्केट एंड दिस एंड दैट, वी हैव द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, लेकिन वो सिर्फ बताया मैंने, लेकिन वो विजुअलाइज नहीं कर पाया बंदा। अगर मैंने उसको वेबसाइट भी भेजा और बोलते समय ये भी कहा, ओके जस्ट गो थ्रू माय वेबसाइट एंड यू विल गेट टू सी कि क्या क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। यस। लेकिन अगर आप वेबसाइट के लिए वो आप सोचो कि 4 और 5,000 भी क्यों खर्चा करें, मैं कहूँगी फिर 5,000 बचाने का पड़ा है, या फिर 5 लाख कैसे कमाए इसके ऊपर काम करना है, या 50 लाख का धंधा करना है इसके ऊपर काम करना है हमें। व्हाट इज योर मोटो? To save 5,000 rupees or to like gain or invest or to earn 50,000 rupees या 50 lakhs rupees? Ask yourself. And this is the basic investment in the business. करनी पड़ेगी आपको। अगर मैं कहूंगी okay, you are technical savvy, you are computer, you have that knowledge about the computer, you can prepare your make your website by own. Go through the WordPress. Out of you all, if you are really like technical savvy हो, तो go to the WordPress और वहां पे आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो free of charge. If you are not into that, don't go waste your time. लर्निंग करना वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। अगर नहीं आती वेबसाइट, ओके नो इश्यूज, आउटसोर्स इट, गेट द सर्विसेज फ्रॉम अदर। 3,000 to 5,000 इज द बेसिक चार्ज। और हमें बहुत ज्यादा अच्छी बनानी नहीं है, बेसिक वेबसाइट हो तो भी चलेगी। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया टू गो अहेड, ओके। सो ये वेबसाइट होना जरूरी है। द सेकंड पार्ट इज आपका प्रेजेंस सोशल मीडिया पे होना चाहिए। तो सोशल मीडिया में फर्स्ट आता है लिंक्डइन। यू शुड बी ऑन द लिंक्डइन। अभी पुराने लोगों को मैंने बहुत बार बताया है, यू शुड बी ऑन द लिंक्डइन। लोग कितने हैं, आस्क टू योरसेल्फ, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। आप में से कितने लोग सच में लिंक्डइन पे हो? And I got the leads from LinkedIn. Yeah, I will tell you what to post. Okay, लेकिन अगर आप में से out of you all, if you are not on the LinkedIn, you are not created your profile on the LinkedIn, do that task first. First visit to LinkedIn and create your profile. अगर नहीं हो तो पहले करो। This is the basic criteria. Why? मैं उसके आगे बताऊंगी। अभी ईरान का जो एक्सपीरियंस मैंने लिया, I have got the experience like by visiting to Iran and before going to Iran and after visiting to Iran also. There are 2-3 phases, before, in the middle and after. इसने अगर 2-3 स्टेजेस का एक्सपीरियंस लिया, सो अगर किसी को भी अगर मैंने मेरा नाम या कंपनी का नाम बताया, therefore checking me on the LinkedIn. Okay. ईरान के बायर के साथ कनेक्ट किया, so they are first checking me on the LinkedIn, whether I really on the LinkedIn or not, whether I'm really in the business or not. So website they are also like checking that. But लेकिन आपके बारे में, क्योंकि हम कंपनी के साथ तो काम करती है, लेकिन बायर भी बीच में आता है ना, एज अ पर्सन. So they are checking the person also, and person को कहाँ पे क्रॉस चेक किया जा सकता है? So this is one part of the thing. LinkedIn पे क्रॉस चेक किया जाता है, क्योंकि LinkedIn is a professional platform. समझा? लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और वहां पे लोग प्रोफेशनली ही बिहेव करते हैं और जो भी कुछ पोस्ट किया जाता है वो प्रोफेशनली पोस्ट किया जाता है। सो लिंक्डइन पे दिस इज द कॉमन टर्मिनोलॉजी इन द इंटरनेशनल बिजनेस। पीपल जब भी आप कुछ भी किसी को भी अप्रोच करोगे, दे विल चेक यू ऑन द लिंक्डइन फर्स्ट। जैसे आप हमेशा क्वेश्चन करते हो ना, यू आर आस्किंग मी हाउ टू फाइंड बायर एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर द बायर इज जेन्युइन और नॉट। The same thing, people are checking about you also, whether you are genuine or not.
And the first criteria for that is they are checking you on the LinkedIn. It's the first criteria. अभी आप खुद को पूछो कि आप सच में genuine हो या नहीं. If you're not there, might be you're not genuine as per them. These are the basic rules in the business. It is not about rocket science. And you all know about me. I'm already doing the business. It is not about I'm just training people. And if it is training, still I'm running my own business. So how I'm growing, how I'm doing, just follow that. Be active. अपने business में active रहना है, बाकी कहाँ पे active नहीं रहना है हमें. So LinkedIn is the first platform. Okay? अभी अगर LinkedIn की बातें हम करें, तो LinkedIn में दो चीजें आती है. The first is आपका प्रोफाइल क्रिएट करना है, एंड द सेकंड इज आपको अपने कंपनी का पेज भी ओपन करना है. ओके दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं? हाँ देख रहा है. हाँ जी. दिस इज द स्क्रीन. अभी ये मेरा लिंक्डइन का पेज है, ठीक है. लिंक्डइन में जाके अगर किसी को भी अपने अप्रोच किया तो दे विल चेक यू ऑन द लिंक्डइन. सो फर्स्ट, एक तो लिंक्डइन के लिए अगर हम सिर्फ लिंक्डइन की बातें करें तो एक होता है प्रोफाइल एंड सेकंड होता है पेज. ओके, तो नाउ दिस इज माय प्रोफाइल. मेरी खुद की प्रोफाइल है, तो लोग इसके बारे में पहले चेक करेंगे. ओके, तो आपको बस इतना चेक करना है कि ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो बैकग्राउंड मैंने डाला है, सो आपका प्रोफाइल पेज होना चाहिए. लोग बहुत सारे मतलब ओपन तो करते हैं लिंक्डइन में, ये पूरा ब्लैंक ही रखा जाता है. सो दिस इज द प्लेटफॉर्म कि आपको अपने कंपनी के बारे में लिखना है कि आपकी स्पेशलिटी क्या है. सो व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है. या HB, यू हैव सम क्वेश्चन? मैम ये आपका पर्सनल अकाउंट है कि कंपनी का पेज है ये? जैसे मैंने दो चीजें कही अभी, लिंक्डइन में दो होता है. दिस द फर्स्ट इज अपनी खुद की प्रोफाइल and the second is company page. So this is my own profile and I have linked this with my company page. So global fortune का अलग पेज है. हाँ, क्योंकि मैंने दोनों क्रिएट किए हैं, बट उस पे कंपनी के पेज पे फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे. मेरे इंडिविजुअल फॉलोअर्स जरूर बढ़ गए. हाँ, वो बढ़ते हैं, लेकिन कंपनी के पेज के लिए टाइम लगता है. उसके लिए आपको एक तो यहाँ के जो कनेक्टेड है उनको इनविटेशन भेजना पड़ेगा, दैट इज वन पार्ट. एंड द सेकंड इज वहां पे एक्टिविटीज को बढ़ाना पड़ेगा. ओके, तो मैंने अभी एक ये ऐप है बफर, तो वो यूज करना शुरू कर दिया. उसमें क्या शेड्यूल कर सकते हैं पूरे महीने भर के लिए, तो उसमें मैंने डाल दिया. वो ऑटोमेटिक फिर अपडेट होते जाते हैं. पोस्ट है, न्यूज है, ब्रोशर है, सारी चीजें. तो उससे रिस्पांस तो आ रहा है, बट ये है कि फॉलोअर्स नहीं है अभी तक उसमें कुछ खास. नहीं, डोंट गो विद द फॉलोअर्स. नंबर का कोई काम नहीं है. आपका प्रोफाइल का क्रेडिबिलिटी बढ़ना चाहिए. ओके, दैट यू आर एक्टिव इन द बिजनेस. वो अपने आप वो फॉलोअर्स, लाइक्स वो सारे बढ़ते हैं, लेकिन पहले आपको एक्टिव मतलब कंटिन्यू रहना चाहिए उसमें. दैट इज द ओनली टास्क. एल्गोरिथम में कहीं ना कहीं वो आने लगता है, वो बस हमें करना है. जी जी. हाँ, यस रेडमी. Ma'am, is this the paid service or a free one? It is free. It is free. Yeah. Okay. जैसे हम सोशल मीडिया पे होते हैं ना, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, मतलब जैसे वैसे ही सेम ये है. ओके, इट्स अ फ्री. आप वहां पे जाके खुद का अकाउंट ओपन करो एंड यू जस्ट स्टार्ट. तो अभी मेरे बारे में मैंने इधर, दिस इज द वन प्लेटफॉर्म यू आर गेटिंग दैट यू कैन शोकेस योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हियर. तो लोग आपके बारे में जान सकते हैं, राइट? अभी ये सारा मतलब जो भी कुछ ये चलता है, तो अभी मैंने मेरे सारे कोर्सेज वगैरह ये सब यहाँ पे रखे हैं, और ये सारे मेरे पोस्टिंग है, ये भी दिख रहे हैं आप. सो डेली आई एम पोस्टिंग ऑन द लिंक्डइन. ओके, और ये सारा एक्सपीरियंस है अभी. सो नाउ दिस इज माय दुबई कंपनी. नाउ द सेकंड इज माय ग्लोबल फॉर्च्यून कंपनी. ओके, आई एम बिजनेस कोच, विजिटिंग फैकल्टी, बुक ऑथर. ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस यू कैन शो हियर, so people can get to know about you and your credibility also.
एंड उतना भी नहीं तो आप वहां पे जाके अपने वेबसाइट भी डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। इन दिस वे यू कैन बिल्ड द क्रेडिबिलिटी इन द बिजनेस। यू कैन सी हियर आल्सो, मतलब बुक ऑथर उसका भी मैंने लिंक दिया है, कौशल फूड प्रोडक्ट्स उसका भी मैंने वेबसाइट यहाँ पे लिंक किया है, एंड प्लस माय जॉब एक्सपीरियंसेस कि मैंने क्या किया था, कौन से कंपनी में काम किया था, ऑल अबाउट दैट। लिंक्डइन में और एक आपको करना है, दिस इज लाइक ये होने के बाद ओके ये सारे मेरे लाइसेंस सर्टिफिकेशन से स्किल्स में कहाँ पे रिकमेंडेशंस होने चाहिए, तो आस्क फॉर द रिकमेंडेशंस आल्सो। अभी ये क्या है, ये बिल्डअप करता है आपके प्रोफाइल को कि ये बंदा सच में जेन्युइन है, ये सच में काम कर रहा है, या फिर लोगों ने उसके बारे में लिखा है, सो रिव्यूज वी कैन सी। ओके आप यहाँ पे ऑनर्स एंड अवार्ड्स डाल सकते हो, लैंग्वेज, मतलब दीज आर द पूरी आपकी कुंडली है यहाँ पे कि आप सच में कौन हो, क्या हो और क्या कर रहे हो, इन शॉर्ट। मैम एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो। मैम ये अब आप कह रहे थे ना कि यूएसपी भी हमें डालना चाहिए, तो मेरे जैसे दोनों प्रोडक्ट्स हैं प्लास्टिक फर्नीचर और एग्रो, तो उसमें हम लोग यूएसपी मैं एनालाइज नहीं कर पा रहा कैसे डालें, क्योंकि प्रोडक्ट यूएसपी तो वहां पे मोर और अभी लेस अगर सेम है। दोनों है ना तो आप दोनों का डालो, मतलब अगर दोनों को प्रमोट करना चाहते हो तो, एंड इफ यू आर हाँ वेरी मैं स्ट्रांग इन दैट, दोनों प्रोडक्ट करते रहता हूँ मैं, हाँ तो प्लास्टिक दोनों डाल फर्नीचर सकते हो। और, बट उसमें यूएसपी क्या डालें हम, जैसे आप कह रहे हो ना कि यूएसपी, क्योंकि क्वालिटीज अलग अलग हैं, जो मतलब पैन इंडिया काम हो रहा है वही हमारा डिजाइन, ऐसा कुछ नहीं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड डिजाइन है, तो उसमें यूएसपी अपन क्या रख सकते हैं मतलब। सो नाउ दिस इज द ग्लोबल फॉर्च्यून पेज, ये मेरे कंपनी का पेज है। इसमें भी मतलब जैसे मैंने अभी ये डाला है, तो ये सारे अभी ऑर्गेनिक है, ये पोस्ट जो हमने डाले हैं। ये हुआ पेज। ओके सो पेज एंड प्रोफाइल में डिफरेंस है, बस इतना ध्यान में रखो। और यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट अ कंपनी पेज, दिख रहा है या नहीं? नहीं मैम, अभी तक मैं नाउ यू कैन सी यहाँ पे है क्रिएट अ कंपनी पेज, है नहीं? देख रहे मैडम, देख रहे। तो ये जो है यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आपको बनानी है, एंड देन यू जस्ट गो देयर क्रिएट अ कंपनी पेज, यहाँ पे जाके एंड फिर जो भी है इंफॉर्मेशन फिलअप करके यू कैन लाइक ओपन योर कंपनी पेज एंड स्टार्ट पोस्टिंग ऑन दैट। तो ये और ज्यादा बिल्टअप किया जाएगा कंपनी के लिए। ओके सो लिंक्डइन इज द फर्स्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म टू क्रिएट योर प्रेजेंस, credibility, right? And people can approach you from there. So this is one of the that. और जैसे मैंने कहा कि ऑफिस बंद करा देना, नहीं खुला बंद करो। ओके और जैसे मैंने कहा अभी आपके लिए कि अगर कोई भी बंदा, इफ यू वांट टू चेक एनीथिंग लाइक एनी अबाउट एनी पर्सन whether they are genuine or not, the first step people are following that they are going on LinkedIn and checking the person. So बाकी के लोग भी हमारे बारे में वही चेक करते हैं और हम भी दूसरे के बारे में वही चेक करेंगे. So here I am telling you two things. One is create your marketing presence. So visit the LinkedIn, profile करो, create करो, page create करो. This is one part. And the second is अगर कोई इंक्वायरी आपको आती है, if any buyer is approaching you, okay, so just उसके डिटेल्स लेके LinkedIn पे चेक करो, तब जाके आपको अंदाजा आएगा. समझा? ओके अभी अगर किसी ने कहा कि क्या पोस्ट करना है, तो पोस्ट करने में वैसे बहुत सारी चीजें हैं.
एक मिनट, दिस इज वन ऑफ द कंपनी, जस्ट आई एम गिविंग यू रेफरेंस कि लाइक लोग क्या पोस्ट करते हैं और आपको क्या करना है. ओके, दिस इज वन. उन्होंने अभी सूरी एग्रो फ्रेश, दिस इज वन ऑफ द लाइक ब्रांड इन द एग्रीकल्चर में, ये बड़ा बहुत बड़ा ब्रांड है. तो वो क्या क्या पोस्ट करते हैं यू कैन सी हियर. ऐसे दूसरे कंपनीज को फॉलो करो जो आपके रिलेटेड होते हैं. दिस इज द पोस्ट. अभी उन्होंने क्या किया है, एज इज जस्ट अ नंबर, बीएमआई इज नॉट स्टे इन द रेंज टू स्टे फिट एट एनी एज, सो हेल्थ हैक्स. अभी ये पोस्ट उनके प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, लेकिन दे जस्ट वांट टू प्रमोट समथिंग, और उसके लिए उनका प्रोडक्ट कैसे काम करेगा उसका आगे वाला चीज है. कुछ समझ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? ओके, नाउ यहाँ पे उन्होंने दिया है, इफ योर एम्बिशंस आर हाई एज आवर्स जॉइन अस. तो ये फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में उनका काम चलता है. नाउ दिस इज द लैंग्वेज ऑफ फ्रूट्स शेयरिंग. अभी उन्होंने प्रमोट ऐसे किया नहीं कि हमारे प्रोडक्ट्स ले लो, हमारे फ्रूट्स ले लो, ऐसे प्रमोशन नहीं चल रहा है उनका. दे आर जस्ट क्रिएटिंग समथिंग बिहाइंड दैट कि ताकि आप वहां तक कैसे आओ. मेंशन योर फेवरेट सेलिब्रिटी यूजिंग सम फ्रूट. देखा, कुछ तो अलग है ये. Okay, a fresh food specialist. Revenue milestones. SF Green, customized pricing for your business with delivery within 24 hours. समझा या नहीं समझा? Yes, ma'am. They are using all marketing strategies for शॉर्ट ऐसे समझ के चलो, like if you want to promote your product and business or services, whatever it is, you just need not to sell anything. Selling is not marketing. It is totally different. Promoting is the marketing. तो हमें सेलिंग करना नहीं है. आपके जो भी प्रोडक्ट्स है, डोंट सेल दैट, प्रमोट दैट कि मैं क्यों वो ले लूं. सो क्रिएट अ नीड इन द मार्केट फॉर दैट, व्हाई यू आर बेस्ट, उसको प्रमोट करो वहां पे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि चलो फुटवेयर को ही मुझे प्रमोट करना है, इफ लाइक आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ चन्वित प्रोडक्ट, सो फुटवेयर को प्रमोट करना है तो मुझे ये प्रमोट करना पड़ेगा कि ओके, एक तो दूसरी उसका यूज क्या है, ओके, उसके ही फुटवेयर क्यों यूज करूं मैं, व्हाट इज द स्पेशल मटेरियल दे आर यूजिंग, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फायदा होता है मुझे. अभी बाटा भी है, ये भी है, वो भी है, तो मैं ये क्यों यूज करूं, तो उसको आपको प्रमोट करना पड़ेगा. तो समझ रहा है नहीं समझ रहा है? यस मैम. तो हमें पहले तो नीड क्रिएट करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की. जैसे अभी हितेश जी ने पूछा कि व्हाट इज यूएसपी, तो प्लास्टिक का बहुत सारे लोग बेचते होंगे, लेकिन मैं आपका प्लास्टिक क्यों लूं, व्हाट इज यूनिक इन योर प्रोडक्ट. और हो सकता है कि योर प्रोडक्ट इज सेम इन द मार्केट, कुछ भी यूनिक नहीं है उसमें. तो नाउ प्रमोट योर सर्विसेज, व्हाई योर सर्विसेज आर बेस्ट, व्हाई योर कंपनी इज बेस्ट इन दैट, बिकॉज माइट बी वी आर गिविंग द टाइमली सर्विसेज, we are ensuring the quality of the material, we are giving in the low prices. तो कुछ तो फाइंड आउट करो ऐसे अलग सी चीज जो आप लोगों को दिखा सकते हो, why you are the best in that. might be the product is same, then कुछ तो अलग दिखाओ उनको. अगर सर्विस लोग बहुत प्रमोट कर रहे तो आप प्राइजेस पे आओ, प्राइजेस लोग प्रमोट कर रहे तो आप क्वालिटी पे आओ, वो भी कुछ प्रमोट कर रहे तो आप सोशल कॉस्ट पे आओ. लेकिन फाइंड आउट समथिंग दैट यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ देन अदर्स, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है. और अगर आज आपको वो पॉइंट नहीं मिल रहा है, दिमाग को इतना टेंशन जोर देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. पहले एक ही काम करो, एटलीस्ट पोस्टिंग समथिंग, कुछ तो पोस्ट करना सीखो. जब से आप एक्टिव रहने लगोगे तब जाके उसमें वैरायटी लानी है. शुरुआत में इतना सोचने लगोगे ना कि मैं क्या पोस्ट, व्हाट टू पोस्ट, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तब जाके वो पूरा फ्लॉप शो होता है. यू आर नॉट पोस्टिंग एट ऑल एनीथिंग, कुछ नहीं पोस्ट किया जाता, आप एक्टिव भी नहीं होते उसमें. या सुकेश, यू वांट टू आस्क समथिंग?
Yeah, for example, I am a working professional, and if I use my LinkedIn personal profile to my my own company, right? Then there will be a conflict, right? If I'm looking for a new company change for my professional life, so how can you help me in this? Like, it's a unique problem. In that case, like you can create your company page and you can start posting there. Though it is not linked to your profile. For example, you can go and check the directly go on the search bar and draw, like put a global fortune. If, for example, if I will tell you, right? So global fortune agar dalte ho, so if you can see my profile also, then it is the risky part for you. Yes, yes. Right? Yes. लेकिन जितना मैंने अभी देखा है वहां पे मेरी प्रोफाइल नहीं दिखाई जाती. अगर मैं ग्लोबल फॉर्चून चेक करती हूँ तो वहां पे सिर्फ ग्लोबल फॉर्चून दिखाया जाता है. इट इज नॉट लिंक्ड विथ एनी पर्सन. Okay, and if it is the case, you can promote your company. वहाँ पे आपका कोई direct connection नहीं होगा. Yes, yes, yes. Correct, correct. In that case, you can. Okay, got it. Yeah. Thanks. That's my question. Thank you. Okay. So बस सबके लिए ध्यान में रखो. LinkedIn का मैं स्पेशल वर्कशॉप बाद में लूंगी कि वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके हैक्स वगैरह क्या होते हैं. We can see later. Just do this one thing. Go on the LinkedIn, create your profile, create your company page also. और जितना बेसिक पॉइंट है प्रोफाइल के उतने सारे फिलअप करो. लाइक बैकग्राउंड पेज लिखना चाहिए, प्रोफाइल लिखनी चाहिए, कीवर्ड्स डालने चाहिए, कंपनी के बारे में डालना चाहिए, योर एक्सपीरियंस, कंपनी के इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट, लाइक वहां पे लिंक पेस्ट करो, वेबसाइट अटैच करो. आपके कुछ अचीवमेंट्स हो तो वो डालो, कंपनी के कुछ अचीवमेंट्स हो तो वो डालो. जस्ट डू द सिंपल थिंग्स. इतना बेसिक करो. ओके, और उसके बाद नेक्स्ट टास्क यू नीड टू डू दैट, कीप पोस्टिंग ऑन द लिंक्डइन. If not daily, at least weekly. Weekly 2 times, weekly 3 times, whatever. अभी लोगों को सवाल आएगा what to post. Might be you have the question what to post. So in this like what to post. So you need to post about the general. मैं बताऊंगी आपको जो मैं फॉलो करती हूँ हमेशा सोशल मीडिया के लिए. Okay. The first is like about your product. प्रोडक्ट है क्या, मुझे सेल नहीं करना है लेकिन मुझे मेरा प्रोडक्ट बताना तो सही है. So first is about the product. Okay. Second is about the awareness. Keep this point in with you and उसके ऊपर काम करो कि क्या पोस्ट करना चाहिए उसके लिए. The first is about your product or services. The second is about the awareness about your product and services. The third is about the education. Educate your customer for your product. Okay. Awareness अलग है, education अलग है. Okay. Then the fourth is motivation. As a company, as a person, company is always motivating something. So motivation to use your product, that is one part. And the second is motivation in general. Okay. The fifth is, ये हुआ fourth point, वो motivation भी देना चाहिए. The fifth is about like social things. So अभी 15 अगस्त आया, तो post for the 15 अगस्त. और 15th अगस्त का पोस्ट लो, wish you like Indians to happy Independence Day and keep your company logo and company name. This is like the social things. कि मतलब लोगों को ये भी लगना चाहिए कि आप socially भी हो. You are connecting to the people. So it is not about 15 August only. So you can celebrate like many things. इंडिया में जो भी होते हैं, like cultural things आप promote कर सकते हो, state wise things promote कर सकते हो. So this is the like next thing. What to post जो हम देख रहे हैं, उसमें ये भी आपको करना पड़ेगा. Okay. Then the next is like अगर कोई social incident होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उससे कुछ तो हुआ, तो इसके लिए आप मतलब कंसर्न हो एज अ कंट्री, एज अ ग्लोबल, उसके ऊपर कुछ पोस्ट किया जा सकता है. ओके. सो कीप योर इमेज बिल्ट अप. तो हमेशा लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, मेरे मिस्टेक क्या होती है आपसे, आप हमेशा अपने प्रोडक्ट को सेल करने की पड़ी होती है आपको. तो हर बार बम्बार्डिंग होता है, जो भी पोस्ट किए जाते हैं ना वो हर बार बम्बार्डिंग आपके प्रोडक्ट का ही होता है. अभी जो मैंने सूर्या एग्रोफ्रेश का दिखाया, तो उन्होंने क्या किया, सेलिब्रिटी का नाम लिखो विद द फ्रूट. ये कोई थोड़ा ही मार्केटिंग सेलिंग था उनका, नहीं था ना, लेकिन लोगों को कनेक्ट करने का तरीका है ये. तो ऐसे कुछ तो अलग अलग सोचना चाहिए कि लोग हमारे साथ कनेक्ट कैसे होते. एक सेकंड बात है, जो भी सोशल मीडिया पर आप क्रिएट कर रहे हो प्रेजेंस, वी आर नॉट देयर एज अ कंपनी, वी आर नॉट देयर फॉर द लाइक्स, फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स. ये हमेशा याद रखो. आपको उसकी पड़ी है कितने लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया. इट इज मतलब वो लगता है, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है, वो बाय डिफॉल्ट थिंग है कि हमें लगता है.
but we are not there for the subscribers, followers and like. We are there to create our identity. This is the only thing. So अगर ये मेरा मकसद है, I want to create my identity, तो identity मेरी कैसी create होनी चाहिए? Not as a salesperson. I am concerned about the social also. I am concerned about the country also. I am concerned about the people also. ये मेरी identity होनी चाहिए as a company. तो उसको promote करो. Okay? Some your achievements भी promote करने चाहिए. अगर आपने कुछ extra काम किया, कुछ achievements हुए आपने like अभी अगर कल air shipment हुआ, तो वो मैंने किया, वो मैंने practical किया, तो we need to post that. ताकि लोगों को लगे ना कि practically आप काम भी कर रहे हो. अगर आप में से कोई ऑलरेडी डोमेस्टिक बिजनेस में है, सो यू कैन पोस्ट देयर आल्सो. आपका अभी कंसाइनमेंट गया, ये शिपमेंट गया, ये कुछ तो छोटा सा ऑर्डर भी आपने दिया, सो पोस्ट देयर. द नेक्स्ट पार्ट इज फीडबैक एंड रिव्यूज. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाट टू पोस्ट में ये भी आता है. पोस्ट योर फीडबैक्स ऑफ कस्टमर्स. अगर आपको वीडियो मिले तो वीडियो पोस्ट करो, रिटर्न में मिले तो रिटर्न में पोस्ट करो. तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप डोमेस्टिक में भी कोई सेल्स करते हो, सेल या सर्विस मतलब बेचते हो, जस्ट रिमेम्बर टू टेक द फीडबैक्स एंड रिव्यूज फ्रॉम द पीपल. वो लेना सीखो. हो सकता है कि आप पहले मतलब शर्माओगे, होता है ना कि कभी कभी हेजिटेशंस होता है. वी आर नॉट डूइंग दैट बिकॉज वी आर नॉट प्रोन टू, वी आर वेरी एक्टिव इन दैट. हमें वो आदत नहीं होती. लेकिन मैं कहूंगी धंधा करना है तो खुद को चेंज करना पड़ेगा. यू नीड टू चेंज योरसेल्फ फॉर द बिजनेस. It is not about what you are. It is about what business demand from you. Actually, business demand क्या करता है? अगर मैं कहूंगी कि चलो मुझे सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं कहूंगी I cannot be a trainer. समझा? फिर मैं ट्रेनर नहीं बन सकती. Why? Because social media is a part of my business and it is very crucial part of my business. अगर मैं वो नहीं करूंगी तो मैं ट्रेनिंग दे ही नहीं सकती लोगों को फिर, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगी नहीं. आई कांट प्रमोट माई सेल्फ. तो मैं बिजनेस कैसे करूंगी फिर? कुछ समझ रहा है? सो फॉर दैट आई नीड टू चेंज माई सेल्फ. यस महेश जी, यू कैन पोस्ट सेम पोस्ट टू अदर सोशल मीडिया ऑल्सो, बट स्टिल जैसे अभी इतना तो पता चला होगा ना आपको व्हाट टू पोस्ट. यस और नो? या तो उसके रिलेटेड कुछ तो पोस्टिंग मतलब बनाना चालू करो. और वीकली शेड्यूल बना सकते हो. तो वीक में एक पोस्ट मोटिवेशन पे जाएगी, वन पोस्ट ऑन द अवेयरनेस, वन पोस्ट ऑन द प्रोडक्ट, वन पोस्ट ऑन द सर्विसेज, वन पोस्ट व्हाई आई एम द बेस्ट, व्हाई माय कंपनी इज द बेस्ट. उसके ऊपर हो सकती है. अगर आपको लिखना नहीं आता, यू आर नॉट इन द राइटिंग, जस्ट पोस्ट द फोटो और वीडियोस, वो भी कर सकते हो. लोग इसके ऊपर जजमेंट नहीं कर रहे कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो या क्या लिखा है आपने, कितना अच्छा लिखा है. एटलीस्ट लोग पहले ये जानना चाहते हैं कि आप सच में बिजनेस में हो या नहीं. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. तो पहला वो फर्स्ट क्राइटेरिया तो फुलफिल करो, बाद में हम क्वालिटी के ऊपर आएंगे. ओके, सो फुलफिल दैट फर्स्ट. द सेकंड इज यू कैन पोस्ट द सेम थिंग ऑन एवरी सोशल मीडिया, जस्ट द एक्सेप्शंस. सम एक्सेप्शंस आर देयर. लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. तो अगर लाइक फॉर एग्जांपल मैं इंस्टा पे जो डालती हूँ, आई कांट पोस्ट सेम थिंग ऑन द लिंक्डइन समटाइम्स. For example, if I have given the training in Bangalore, so I have posted my Bangalore seminar photos on LinkedIn. तो सेम पोस्ट में उठा के सारे सोशल मीडिया पे सेम डाल सकती हूँ. दैट इज पॉसिबल बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल. यस, बट अगर मैं अभी लाइक मैं कल जाके ट्रेकिंग को गई एंड आई हैव पोस्टेड दैट ऑन द इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला मैंने ट्रेकिंग के मेरे फोटोज या फिर ट्रेकिंग की जर्नी या फिर वीडियोस वहां पे जर्नी के वो सारे. अगर आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करते हो तो मैंने स्टोरी पे सोशल मीडिया पे डाला था बेंगलोर का ट्रिप, जो भी कुछ है, ये ऐसे बहुत सारी चीजें डाली थी. बट सेम थिंग आई कांट पोस्ट ऑन द लिंक्डइन. वो लिंक्डइन पे नहीं जा सकता अभी बिकॉज इंस्टाग्राम इज डिफरेंट प्लेटफॉर्म देन द लिंक्डइन. सो सम चीजें सब में जा सकती है, सम चीजें एज पर द मीडिया प्लेटफॉर्म के हिसाब से करनी पड़ेगी. Got it? Now Facebook is different. So Facebook and Instagram you can post everything in the same. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. But LinkedIn पे वो सेम चीजें शायद नहीं जा सकेगी. Okay? Be active on the Twitter also because Twitter is the global network. और Twitter पे 2 लाइन 3 लाइन लिखनी है. अगर आपने शिपमेंट किया तो फोटो पोस्ट करो, ओके 2 days dispatch, इतना लिखा तो भी ठीक है, और अपने कंपनी का नाम डालो. That is also okay.
उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये क्यों इतना चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ, क्योंकि आप तब तक आगे नहीं जा सकोगे। बिलीव मी, you can't go ahead. Marketing is the crucial part of your business. Unless and until you create your identity, presence in the market, no one will believe on you. मैम बहुत सारा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। Okay, please mute. जो भी अनम्यूट में हो, प्लीज म्यूट। ओके, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। या सो अभी एक चीज मैंने जो देखी while visiting to other countries also, like बहुत बार even in India might be we are ज्यादा एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, is it? We are mostly active on the Instagram now. पहले हम फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव थे, yes? Earlier we were active on the Facebook, but now we are active on the Instagram. Okay, so now in Indian market people are mostly active on the Instagram. So what are the differences I have seen? In Nepal, people are active on the Facebook, not on Instagram. समझा भी मार्केट में कैसे डिफरेंसेस है? In Nepal, people are active on the Facebook, so they are looking you in the Facebook, not on the Instagram. So ऐसे नहीं चलेगा कि मैं Instagram पे हूँ, Facebook पे नहीं हूँ. ओके, सो इसीलिए सब जगह पे प्रोफाइल ओपन करो और सब जगह पे कुछ ना कुछ तो डालते रहो. तो जैसे मैंने बोला सेम भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. सिर्फ लिंक्डइन के बाद, लिंक्डइन के लिए बी केयरफुल इन दैट, बिकॉज लिंक्डइन प्रोफेशनल है, इसीलिए बस उतना टेक केयर करना है, बाकी सारी चीजें सेम जा सकती है. ओके, लेकिन मैंने ईरान में चेक किया, ईरान में लोग फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव नहीं है, दे आर एक्टिव ऑन द इंस्टाग्राम. सो नाउ दिस इज द डिफरेंस. ईरान इज मोस्टली एक्टिव ऑन द इंस्टा एंड लिंक्डइन. सो अगर आप ईरान के साथ डील करने के लिए जाओगे तो ईरानियन पीपल विल चेक यू ऑन द इंस्टा एंड लिंक्डइन, दे विल कनेक्ट यू ऑन द इंस्टा एंड लिंक्डइन. ओके, लेकिन अगर यूट्यूब की बात करूं मैं, तो ईरान में यूट्यूब बैन है. ओके, यूट्यूब इज बैन इन ईरान, बट नेपाल इट इज मोस्टली एक्टिव. सो इन शॉर्ट क्या पता चला, इफ वी वांट टू गो ग्लोबली वी शुड बी प्रेजेंट ऑन द ऑल सोशल मीडिया. इट इज नॉट अबाउट यूर लाइकिंग. क्या आपको इंस्टा पसंद है, फेसबुक ज्यादा नहीं चलता अभी. सम कंट्रीज में इंस्टा ज्यादा चलता है. अभी अगर मैंने नेपाल में देखा, जस्ट लिसन द थिंग्स, नेपाल में मैंने देखा कि टिकटॉक वहां पे ज्यादा एक्टिव है, लेकिन इंडिया में टिकटॉक बैन है. इज इट बराबर ना? तो अभी नेपाल में जब भी मैं गई थी, आई हैव लाइक, वो भी मैंने चेक किया वहां पे लोगों से बात करके वगैरह कि और ज्यादा प्रेजेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है नेपाल में. तो उन्होंने कहा कि यू कैन पोस्ट अ टिकटॉक, आप टिकटॉक पे मतलब काम कर सकते हो, तब जाके नेपाल में ज्यादा प्रमोशन किया जाएगा उसके थ्रू. सो दीज आर द थिंग. सो इसीलिए थोड़ा सा एक्टिव रहना सीखो सारे प्लेटफॉर्म पे. और एक्टिव का मतलब ये नहीं होता महीने में एक बार आओगे. इन शॉर्ट में सिर्फ लिटरली इन द सिंपल लैंग्वेज इफ आई विल टेल यू, इफ योर शॉप, अगर आप फिजिकली शॉप ओपन करके बैठे हो मार्केट में, you open your shop in the physical way and you are opening that shop in the month में एक ही बार ओपन करते हो, हर मंथ में सिर्फ एक ही बार ओपन करते हो, कितने कस्टमर्स आएंगे आपके पास? बताओ. नहीं आएगी, मैं तो नहीं आऊंगी. पता नहीं अगले मंथ में ओपन करोगे या नहीं करोगे, वो भी पता नहीं मुझे. सो दिस इज द रियलिटी, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंकिंग. थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है. अगर सोशल मीडिया पे भी अगर आपका प्रेजेंस सिर्फ महीने में एक बार दिखता है, 2 महीने में एक बार दिखता है, कभी भी आप आते हो, कभी भी चले जाते हो, सो हु विल लाइक ट्रस्ट ऑन यू, हु विल बिलीव ऑन यू? डोंट टेक इट कैजुअली प्लीज. अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी भूल गए तो भी चलेगा मुझे, आई विल बी देयर टू गाइड यू. लेकिन आपका मार्केटिंग आपको ही करना पड़ेगा. इफ यू आर रियली इनटू दैट, जस्ट डू दैट. अगर आप नहीं कर सकते हो, आउटसोर्स करो उसको, टेक द सर्विसेज फ्रॉम अदर्स, बट डू दैट. लेकिन उसको इग्नोर मत करो. और उसके आगे वाले एक बात बताऊंगी, इफ यू और एनी वन ऑफ यू, इफ यू आर नॉट फॉर्म योर कंपनी ऑल्सो, अगर आज तक आपने अपनी कंपनी भी नहीं ओपन की, यू आर स्टार्टअप, यू आर जीरो इन दैट, बट स्टिल यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंस बाय द कंपनी नेम. नो वन इज आस्किंग यू शो मी द डॉक्यूमेंटेशन. ओके, क्योंकि टाइम इज इंपॉर्टेंट फैक्टर. If I have started my social media presence from the now,
और अगर नेक्स्ट 6 months में अगर मुझे कोई इंक्वायरी मिलती है, दे आर सीइंग मी दैट आई एम एटलीस्ट फ्रॉम द लास्ट 6 months इन द बिजनेस। दिस इज द रियलिटी। और अगर आप आज ही चालू करते हो और कल जाके कोई इंक्वायरी आती है, तो दे आर सीइंग यू दैट ओनली one day you are in the business. Okay, so these are the differences. Yes, हाँ हितेश जी। मैम वो थोड़ा टाइम पहले आपने जैसे संतोष जी का प्रोफाइल वो किया था ना अपने पेज के थ्रू प्रमोशन, जो ओडिशा वाले जो संतोष जी हैं। नहीं, मैंने इनको कहा था, सुकेश जी को कहा था, दे हैव आस्क्ड मी लाइक वो अभी जॉब करते हैं, सो दे कांट प्रमोट फ्रॉम देयर प्रोफाइल, बिजनेस नहीं में नहीं उसको प्रमोट नहीं कर सकते। नहीं थोड़ा टाइम पहले आपने वो संतोष जी का वीडियो अपलोड नहीं किया था कि उन्होंने एक्सपोर्ट्स किया है काफी, आपके पेज पे आपने संतोष जी का प्रमोशन दिखाया था ना कि संतोष जी आपके स्टूडेंट हैं और कैसे उन्होंने एक्सपोर्ट जर्नी करी थी। राइट हाँ। तो मैं सोच रहा था मतलब आपके थ्रू अगर हम लोग के भी प्रोडक्ट्स एक हो जाएं कि हितेश बत्रा इज आवर मेंबर एंड ही इज इनटू फर्नीचर एंड ऑल। यस, अरे मैंने हर बार ये बोला है आपको, एटलीस्ट इसीलिए तो आप तो खुद का प्रेजेंस थोड़ा तो बढ़ाओ। वी कैन क्रॉस प्रमोट ईच अदर। आप चेक करोगे तो है लकी ग्लोबल वेंचर के नाम से। हाँ, ये हो सकता है, वी कैन क्रॉस प्रमोट ईच अदर। नाउ मेरे लिंक्डइन पे अभी 4300 फॉलोअर्स है। ओके तो ठीक है मैम, मैं शेयर कर देता हूं। फॉलोअर्स बढ़ने इट इज वेरी क्रूशियल पार्ट, बिकॉज़ दे ऑल आर प्रोफेशनल्स। ओके, सो हम क्रॉस प्रमोट मतलब एक दूसरे को कर सकते हो, समझ के चलो। वी आर मोर देन 1000 पीपल। तो आज अगर कुछ भी मार्केट का एक भी बंदा सब्सक्राइब लाइक नहीं करता, स्टिल 1000 पीपल आर विन द फैमिली। तो कितना हो सकता है, लेकिन आपको प्रमोट करना ही नहीं है, तो मुझे पता नहीं चला करना क्या है आपको, फिर बताओ। अरे कोई तो बताओ क्या करना क्या है फिर। हाँ, yes, Sukesh, any question? Yeah. So as we are very initial stage of business, and yes, I do understand the importance of the marketing. I am not denying for that, but all these are cost factors. All these are cost factors. So among all these platforms, what do you suggest? Which one we can approach first? What are the 2 main platforms or the 3 main platforms initially we can work on, later we can expand? What is your product? So we are just into the buying and selling. But the product is? So we are planning for sugar and jaggery. Sugar and jaggery. Okay. Yeah. So LinkedIn is the first you should have. That is the first platform. For all of you, LinkedIn is the first platform. आप उसके ऊपर होना ही चाहिए आपको. It is must mandatory, we can say. Okay. And the second is you can choose out of Facebook and Insta. Okay. Either of. अगर आप दोनों को, मैं कहूँगी दोनों के ऊपर रह सकते हो, because Insta and Facebook same posting किया तो भी चलता है. Obviously, yes. Yeah, so you can like LinkedIn and Facebook Insta. Facebook Insta एक ही समझ के चलो. Got it. उसके ऊपर आप पहले अपना क्रिएट करो प्रेजेंस फिर. Got it. Yeah. Thanks. That's my question. और अगर हाँ किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है तो भी कोई बात नहीं. पहले मैंने जैसे बोला हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट एंड मार्केट, उसके थ्रू जाओ. एटलीस्ट कुछ तो फाइनल करो कि आप कौन से सेक्टर में काम करना चाहते हैं. माइट बी नॉट द नैरो प्रोडक्ट, बट एटलीस्ट सम सेक्टर यू कैन आइडेंटिफाई एंड देन यू कैन प्रमोट अकॉर्डिंगली. लेकिन एक वन स्टेज पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. व्हाट इज योर प्रोडक्ट? ओके, क्वेश्चंस? किसी को कोई क्वेश्चन है, नहीं है? इतने अच्छे स्टूडेंट कैसे हो आप? नो मैडम. मैम आप एक्सप्लेन ही इतना अच्छा करती है कि क्वेश्चंस आते ही नहीं है, उल्टा होता है. नहीं, ऐसे बोलना चाहिए वर्षा आपको कि आप चिल्लाते इतना अच्छा हो ना कि कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं होता. Okay, but we believe me, like this is so important. Please don't forget that. Don't give excuses. This is just आपको आदत नहीं है अभी, इसीलिए आपको प्रॉब्लम लग रहा है.
बट एक बार आप हैबिचुअल में आओगे देयर इज नो एनी प्रॉब्लम फॉर दैट। क्योंकि जब तक हम है ना कि लोग चिल्ला चिल्ला के बताते, मैं बस इतना कहूंगी कि हमें खुद को प्रमोट करना आना चाहिए, बस उतना ही काम हमें करना है। एंड दिस इज द ओनली बेस्ट। आप इसमें मास्टरी करो, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अल्टीमेटली सारा सेटल हो जाता है। मुझे बताओ कि पहले बिजनेस में फर्स्ट फंडामेंटल क्या है? एक बार आपको कुछ तो कवर हो जाए, लाइक जैसे होता है ना कि अगर मुझे कोई तो अप्रोच करे कि यस अरे आपके पास वो जागीरी मिल सकती है क्या, सो बात उससे आगे चलेगी ना। अभी अगर किसी ने अप्रोच ही नहीं किया आपको, तो फिर आप बात आगे क्या करोगे? आईसी किस काम की है, आरसीएमसी किस काम की है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन किस काम का है? एंड यू आर मास्टर इन द प्रोडक्ट एंड लॉजिस्टिक में मास्टरी है, डॉक्यूमेंटेशन में मास्टरी है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? ओके, तो इसलिए बस थोड़ा सा काम उसके ऊपर काम करो। ओके, सारना जी आर आस्किंग व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ हैकर। सो ग्रोथ हैकर का इसका मतलब अभी के लिए जनरली अभी नाउ टेक्निकल एज में कहा जाता है, अगर हम इंस्टाग्राम में प्रमोशन करना चाहते हैं, इफ आई वांट टू बी ऑन द इंस्टाग्राम एंड आई वांट टू हैव माय फॉलोअर्स लाइक 10,000 15,000 या 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए। सो कुछ तो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंस्टाग्राम की मास्टरी करके रखी है, they are very expertise in the Instagram, so they are called as a growth hacker. They will help you how to grow in the Instagram, उसको growth hacker कहा जाता है। तो ऐसे अभी लोग इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में है, यूट्यूब में है, लिंक्डइन में भी है। So they are called themselves as a growth hacker because they will give you the growth in that particular platform. Yeah, okay, Dinesh ji. Ma'am, apart from advertising ourselves, can we use the services of DAA, that is digital ad agencies like that? Like for example? I'm not sure about that. For some agency or consultancy advertising on behalf of us. Now in the age like after COVID में कहूंगी, after the pandemic, if we can see the market and marketing behavior, people interest and all other things, now like everything is like coming on the majority stake of the advertising and all, it is on the digital. Okay, so अगर आप जो भी कह रहे हो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप खुद करने से अच्छा है कि आप किसी को आउटसोर्स करें वो, और वो आपके बिहाफ में वो काम करेंगे। Either this is one part, लेकिन ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग अभी के लिए तो बहुत कम चल रहा है। बट सम कंट्रीज में, इफ आई विल से यू दैट in the some countries they are like doing the offline advertising also in terms of magazines, वो मैगजीन में प्रिंटिंग किया जाता है, आपके कंपनी का एड मैगजीन में लाया जाता है। सो सम कंट्रीज ये भी चलता है, बट इट इज वेरी कॉस्टली, ये कॉस्टली है। सो बेटर है कि हम सोशल मीडिया पे पहले आए, और अगर हमें लगा कि चलो अफ्रीका में, नाइजीरिया में ही मुझे प्रमोट करना है, सो इन द नाइजीरिया आई विल फाइंड आउट सम मैगजीन्स जो वहां पे अच्छे चलते हैं एंड आई विल पुट माय एड ऑन द मैगजीन। सो मैं एजेंसी के थ्रू कर सकती हूँ फिर, दैट इज वन थिंग। ओके, सब लोग म्यूट करो ताकि सबको सुनाई दे जाए, क्योंकि एक दूसरे के आवाज, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत नॉइज कर रहा है। ओके, एनी क्वेश्चंस? Where is Triveni? Are you there? Yes, Sushma ji, I'm here. Can you on your camera? Okay, hold on. तब तक कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो यू कैन आस्क। Hi. ओके, आप तो हिमालय में बैठे हो? नहीं, I joined in late actually. That is okay. I know that. Okay, just introduce yourself. Okay, my name is Triveni. I work with a shipping company in Singapore, but I'm basically from Nasik, Maharashtra. As I shared yesterday that I really want to start my own export business. So there are certain things that I am not quite aware, or maybe I'm practically not equipped with that knowledge, but that is the intention of joining this session. And
of course, since it's a lifetime support session, so I'll definitely like want to start something with your guidance, with your support, and obviously with my own, initiative. So yeah. So now where are you? In India or Singapore? No, I'm in Singapore. So इसलिए मैंने लेट ज्वाइन किया क्योंकि टाइम जोन डिफरेंस की वजह से। अभी यहाँ पे 11 बज रहा है रात के। ओह ठीक है, फिर हमें ग्लोबल टाइम के हिसाब से सेमिनार कंडक्ट करने पड़ेंगे। इट विल बी वेरी सून। नहीं, कोई बात नहीं। yes definitely okay, so for all of you, like इसीलिए मैंने त्रिवेणी को बोलने के लिए कहा था, because you can cross check the opportunities with each other. yeah, it is not necessary कि that आपको खुद का ही प्रोडक्ट चाहिए तब जाके ही काम होगा, but at least you can initiate the procedure and you can be in the process and how you can help each other. So उसके लिए भी काम कर सकते हो. Like now, right now, Triveni is in Singapore. So what are the products might be she can explore in the market and demand in the market, and you can order from India, and Indian जो भी students say, they will help you in that procedure. That can be done also. Yes. Okay. It's all about connections, as you said. Yes, actually, it is all about the connections. It is not about knowledge and understanding. कितना भी mastery क्यों ना करो, लेकिन अगर कोई साथ में करने के लिए नहीं तो no use of that. Correct. Yeah. Thank Chalo, you. any questions, any doubts? बस सारे काम करो, कुछ तो रिजल्ट चाहिए, सिर्फ नॉलेज ज्ञान बांट के कुछ नहीं मिलेगा और कुछ काम होगा भी नहीं. Yes, any question, any doubt? Hello, yes, ma'am. Yes. Yes, I have a doubt, but not related to today's session. Actually, I was finding the supplier and he was ready to supply, but वो जो product है, वो product के पे उनका manufactured by his name, means उनका company का name वो था. But I'm in trading only. I'm just procuring some material from him and supplying. Yes, so that is my concern कि जो उनका जो product है, जो मैं उनसे ले रहा हूँ, उस पे manufactured by उनका नाम है. So in that case, what we can do? अभी लेके वो ब्रांड का प्रोडक्ट है या नॉन ब्रांडेड है, क्या है? Branded है, Pulses. Yes. No, अभी उसमें 2-3 ऑप्शंस आते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर, आई हैव माय ओन ब्रांड एंड यू आर टेकिंग प्रोडक्ट फ्रॉम मी एंड यू आर अगेन सप्लाइंग फर्दर. ओके, इफ दिस इज द केस, ओके, अगर आपको डायरेक्टली एज इट इज मुझसे लेना पड़ेगा एंड द सेम प्रोडक्ट विद द ब्रांडिंग एंड ऑल जैसे आगे चला गया. This is one part. Okay. The second is, if you don't want to do that, if you want to promote your brand name on that, you need to connect with me and we should have the agreement between us. Okay. Okay, then only you can take product from me and you can put your own branding on that. This is one part. Manufactured by them and marketed by me. Yes, you can do that. लेकिन उसके लिए you need to connect with me. मतलब in short, to the manufacturer, and you can have the agreement between both of us. Right, तब right. जाके ये किया जाता है. Okay, So but अगर हाँ बोलो. अगर सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड बाय देम और मैन्युफैक्चर्ड बाय उनके कंपनी का नाम रहे, सो मैं डायरेक्टली वो प्रोडक्ट यूज कर सकता हूँ ना? Yes, you can. But लेकिन वो उनके नाम से ही आगे चलेगा, आपका कुछ नहीं होगा उसमें. Yes, that is the question. क्योंकि मैं जहाँ आगे प्रोवाइड करूंगा मेरे क्लाइंट्स को, सो उनका भी ये क्वेश्चन रहेगा ना कि आपका नाम कहीं पे नहीं है. वही तो मैंने बोला ना. तो सेम थिंग, दो बातें है ना उसमें. अगर आपने मुझसे लिया, एज इट इज लिया, विदाउट माय कंसर्न एंड ऑल, जैसे नॉर्मली परचेस किया जाता है, और आप आगे बेच रहे हो, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है ना उसमें. तो मेरे लिए क्या है कि मेरा ही प्रोडक्ट आगे चल रहा है. हाँ. दिस इज द थिंग. तो इसीलिए मुझे अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके ऊपर. लेकिन अगर आपको अगर वही प्रोडक्ट में अगर आगे काम करना है, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी और यू कैन टेक इन होलसेल फ्रॉम मी, रीब्रांडिंग करो, रीपैकेजिंग करो एंड फिर आगे बेचो. उसमें भी मुझे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आप होलसेल लेके आप आगे अपना ब्रांडिंग कर रहे हो. लेकिन अगर सेम ब्रांड ही आपको अगर प्रमोट करना हो, तो देन यू नीड टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मी, एग्रीमेंट विथ मी. सो दीज आर द 2 ऑप्शंस. आइदर आप होलसेल लो, बल्क में लो और रीपैकिंग करके आगे चलो आपके ब्रांडिंग से. दैट कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन. और अदरवाइज सेम मेरा ब्रांड लेकिन मार्केटेड बाय यू एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय मी, ऐसे हो सकता है. ओके, थैंक यू. एंड वन मोर मैडम, कि जैसे आपने बताया वेबसाइट के लिए 3000 to 5000 तक का कॉस्ट लगता है.
So do you have any references? Can you provide? Yes, I can. Yes, आपसे टीम से अगर कनेक्ट करे तो हो जाएगा. Yes, sure. और अगर if any of Global Fortune students have that reference or you all own doing that, you can just promote each other. वो भी हो सकता है. Yes. I will share my references. But अगर आप में से कोई अगर खुद बनाता है, मतलब you are the own like making the website and all, you have that services, you can tell in the group. That is also thing. Yes. Chalo, any question? Ma'am, I have got a question, ma'am. Bolo. Ma'am, yeah, like I have decided some two products like jaggery and artificial jewelry. तो ये ऐसे वेबसाइट में डाल सकते हैं क्या मैम? ऐसे अगर दो प्रोडक्ट है तो आप दो भी डाल सकते हो. You can create some pages. जैसे अगर for example if I am a merchant trader and I have plastic products also and I have agri products also and I have handicraft products also, right? So I will like my company name is like Juicy Industries Private Limited. Home about us, I will like put all the information about the company and all, and product उस टैब में 3 टैब आएंगे. So product के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वहां पे आएगा एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल. सो अगर एग्रीकल्चर पे कोई क्लिक करेगा तो वो आगे जाके एग्रीकल्चर की सारी चीजें देखेगा वहां पे. समझा? हेलो, यस विजया जी. माइट बी इनका कनेक्शन प्रॉब्लम. बाकी सबको समझा? वेबसाइट में जाके यू कैन क्रिएट सच टैब्स एंड यू कैन पुट ऑल द इंफॉर्मेशन देयर, बट द सेपरेट द पेजेस. सब में एक खिचड़ी मत करो. वहां पे एग्रीकल्चर सेपरेशन करो उसमें और उस वैसे डालो. राइट? या हितेश जी, दैट विल बी द गुड. एक्चुअली लास्ट टाइम हमने ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ था. वी विल क्रिएट एक एफबी ग्रुप, क्लोज एफबी ग्रुप हम क्रिएट करेंगे फेसबुक का. ओके, ऑल प्लैटिनम स्टूडेंट्स विल बी देयर, सो यू कैन प्रमोट ईच अदर्स प्रोडक्ट आल्सो. यू कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड क्यूरीज आल्सो. तो दैट विल बी बेटर फॉर मतलब सबके लिए बेटर रहेगा. लेकिन सब लोग वहां पे प्रेजेंट रहो. मतलब एक तो कनेक्ट करो पहले एंड देन प्रेजेंट भी रहो, एक्टिव रहो, तब जाके वो ग्रुप आगे चलेगा. सो इट इज कॉल्ड एज अ क्लोज कम्युनिटी. ठीक है? आई विल पोस्ट द लिंक एंड ऑल अदर इन द ग्रुप सो वी कैन कनेक्ट. वो ज्यादा बेटर क्यों रहेगा? फॉर एग्जाम्पल किसी के पास ऑलरेडी जागरी है, किसी के पास ऑलरेडी हैंडीक्राफ्ट है, तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो. देन यू कैन कम टू नो ईच अदर कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है, एंड देन यू कैन कनेक्ट. अगर कोई डाउट आया तो वो भी वहां पे पोस्ट किया जा सकता है. मैम क्वेश्चन. हाँ बोलो. मैम जैसे मैंने वेबसाइट का मैंने पूछा था, इंक्वायरी करी थी, तो इसमें जैसे 2 तरीके रहते हैं कि एक तो हम कोडिंग से करते हैं, दूसरा हम GoDaddy से करते हैं, जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं. तो इसमें क्या कुछ डिफरेंस रहता है कि कोडिंग वाला जो होता है वो बेटर रहता है? डोमेन का पूछ रहे हो? वेबसाइट का. वही वेबसाइट डोमेन ना, जो कंपनी की जैसे कंपनी की वेबसाइट बनानी है जैसे आपकी बनी होगी है. मैम ही इज आस्किंग स्टैटिक एंड स्टैटिक बनाते वो GoDaddy से बनता है, और जिसको आप अल्टर कर सकते हो और चेंज कर सकते हो, कुछ अपलोड कर सकते हो, वो आपको कोडिंग से बनाना पड़ता है. हाँ, वो कोडिंग वाला बेटर है कि ये GoDaddy वाला? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा है. दोनों का कॉस्ट में डिफरेंस रहेगा. स्टैटिक जो रहता है GoDaddy का वगैरह जो वो बहुत जाता है में. कोडिंग में आपका कॉस्ट ज्यादा रहता है, बट वो आपको डिस्क्राइब ज्यादा, आप उसमें इंफॉर्मेशन अच्छे से डाल सकते हो, आप फोटोज अपलोड कर सकते हो, आपके पास एक्सेस रहता है, हर चीज आप उसमें वर्क कर सकते हो. राइट. जनरल में कहूंगी द बेसिक थिंग इज लाइक परचेज द डोमेन फ्रॉम GoDaddy और अदर प्लेटफॉर्म. मेनली आई हैव परचेज फ्रॉम द GoDaddy एंड वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाओ, दैट विल बी इजी. यस मैम, और एक बात पूछनी थी कि हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट ही बेच सकते हैं या सर्विसेज भी कर सकते हैं? बोथ. सर्विसेज कैसे वर्क करेंगे उसके ऊपर मैम? वर्क मतलब कौन से टर्म में वर्क? वर्क इन द सेंस ऑफ व्हाट? सर्विसेज मतलब क्या है कि अगर मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ तो दैट्स अ सर्विस आई एम प्रोवाइडिंग, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग. ओके, अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो आई एम सेलिंग सम प्रोडक्ट.
लेकिन अगर सर्विसेज जैसे कि मेरे गर्ल्स हॉस्टल भी है, दैट्स अ सर्विस समथिंग, तो सर्विसेज कैसे वर्क करते हैं? Like for example, like I am giving the training services to other country now. Right. I am giving the coaching services to other country. So this is kind of service. It is not a tangible physical movement, कुछ नहीं हो रहा उसका, right? It is just virtual जा रहा है, या फिर मैं खुद जाके दूंगी, या फिर वो बंदे यहाँ पे आएंगे और मैं सिखाऊंगी, like that for example. So उसके लिए क्या होता है कि आपकी जो सर्विस है, फॉर एग्जाम्पल त्रिवेणी इज इन सिंगापुर एंड आई एम इन इंडिया एंड शी वांट माय कोचिंग, सो आई हैव जस्ट कोच हर, मैंने जो भी कुछ उसको कंसल्टेंसी गाइडेंस देना है वो मैंने दिया उसको. सो आइदर मैंने वो वर्चुअली दिया या फिर फोन कॉल पे दिया, व्हाटएवर द मोड ऑफ लाइक जो भी कुछ सर्विस का होगा वो, या फिर वो यहाँ पे आई मैंने उसको सिखाया, या फिर मैं सिंगापुर जाके उसको सिखा के आई, व्हाटएवर द थिंग. सो मैं इसके केस में क्या करूंगी, सर्विस तो डिलीवर हो गई, नाउ वी विल रेज द इनवाइस फॉर देम. उस बंदे को जो भी कुछ सर्विस है उसका इनवाइस रेज किया जाएगा, एंड फॉर दैट इनवाइस दे विल गिव मी द करेंसी. सो वो मेरे बैंक में आएगी, लेकिन बैंक को क्लोजर करने के लिए वो इनवाइस लगता है. ओके, दिस इज द ओनली थिंग. बस यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होते, बस उतना ही ऑप्शन स्किप होता है, बाकी सारी चीजें सेम. आईसी यू ऑल्सो रिक्वायर्ड, आरसीएमसी भी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे से पोर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होता. सो आरसीएमसी आपको लगेगी सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की. ओके, सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, राइट. तो आपको वहां से आरसीएमसी लेनी पड़ेगी. व्हाई? बिकॉज लाइक ऑन एवरी सर्विस यू आर गेटिंग 5% ऑफ द सब्सिडी. ओके, दैट इज द बेनिफिट. और आईसी में जब भी आप करोगे तो आईसी में एज अ सर्विस एक्सपोर्टर करके लिख करना पड़ेगा. यू शुड टिक टू दैट. Because while issuing IEC, for all of you, while issuing IEC, there are 3 options. One is merchant exporter, then the second manufacturer exporter, and then the service exporter. Sometimes the option is merchant come manufacturer. Sometimes that merchant manufacturer come service exporter. So अगर आपके IEC में service exporter पर टिक नहीं है तो you need to update that. Okay? Yes, ma'am. मैम वन क्वेश्चन, इसमें मैम सर्विस में अगर कोई भी टाइप का है, चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड है, जैसे मेरी सिस्टर है वो डिजिटल मार्केटिंग में है अभी, तो वो भी इस फील्ड में आ सकती है? वही सेम हुआ, उसके लिए भी सेम हुआ. कोई भी सर्विस दो, people are using your services and they want to pay you, you can get the foreign currency. अभी उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं. नाउ पीपल आर गेटिंग द पेमेंट फ्रॉम द रेजर पे आल्सो, जो फॉरेन के पेपाल से लेते हैं पेमेंट, बट इट इज नॉट कॉल्ड एज अ सर्विस एक्सपोर्ट इफ यू आर एक्सेप्टिंग द पेमेंट फ्रॉम द पेपाल एंड रेजर पे. राइट, इट इज काइंड ऑफ जस्ट एडजस्टमेंट वी आर डूइंग. ओके, लेकिन अगर आप प्रॉपरली बैंक चैनल से पैसे ले रहे हो, दे आर डूइंग फ्रॉम द बैंक एंड यू आर गेटिंग द फॉरेन करेंसी इन योर अकाउंट, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्विस एक्सपोर्ट. So आज के लिए इतना काफी है. Do work on that. Next जो सेशन है I will announce. But yes, you all can join for the 1st, 2nd and 3rd August को जो होने वाला है, which is for the about the export and import from the start to end. If old students want to repeat it, you can connect. For the new students, please connect it. Don't forget it. Don't miss it, because you will get to know about the all idea about the import and export. That is very much important. क्योंकि आगे जब भी हम डिस्कशंस करेंगे तो यू एटलीस्ट नो अबाउट दैट कि क्या चल रहा है, क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है. ओके, सो डोंट मिस इट. सो सारे नए लोगों के लिए ये वार्निंग है कि अगर आपने मिस किया तो आई विल नॉट गिव यू रिकॉर्डिंग. ठीक है ना? ओके, धमकी बहुत अच्छे से देती है. क्या कहा? धमकी खूप छान देता. ठीक है, चलो अभी करो, काम करो, और जो भी कुछ हेल्प लगेगी, यस यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम, बट काम करो उसके ऊपर. मुझे बस इतना चाहिए कि आप काम करो, करते जाओ, कुछ ना कुछ तो वर्कआउट जरूर होता है. इफ यू आर टेकिंग एनी लाइक एफर्ट्स, रिजल्ट्स आर देयर. कम मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर. अगर कुछ किया नहीं तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है. ठीक है, सो बी कनेक्ट. 1st, 2nd, 3rd वी विल कनेक्ट. और बाकी जो भी ग्रुप शिपमेंट हुआ था, एयर शिपमेंट वालों को स्पेशली सेल्स रिपोर्ट आई एम जस्ट गेटिंग, सो वी विल कनेक्ट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो.
ठीक है? Okay, ma'am. Okay, Yeah. ma'am. Okay. Thank you so ma'am. much, Sushma. It's a really Thank you. informative session. Thank you so much. Yes, Thank you, ma'am. Thank you so much once again. Good night. Take care and take Thank you. action. Bye. Good night.